Good morning to all of you. I, Amit Kumar, again welcome you all in IIT Manthan. I hope that you all will be well and are enjoying the video lectures. So today, I just take a few seconds to tell you something. So all of you know that this is the lockdown period, and everybody is enjoying in playing with electronic gadgets of their parents or itself. So this lockdown period is the best golden opportunity provided to you people, or we also, to impart education and to learn something new in this lockdown period. So all the students are found to be busy with their electronic gadgets instead of utilizing their resources regarding studies. So schools are doing their own work. Teaching institutions are also making their best effort to make the student get engaged with the studies in a better and efficient way. But this is the fact that most of the students are busy with the electronic gadgets of their parents, and this is very bad, because this is the golden opportunity for the students to learn something. This is the best opportunity for the students, because this lockdown period, don't take it as a lockdown period that you are locked somewhere. No, take it as positive. Be positive and try to utilize the resources in the best efficient way in which you can utilize it. So rather than being busy with the electronic gadgets, please try to utilize the resources in terms of studies only, and try to make your sitting hours increased so that you will be more busy with your books. As you know, books are the good friends for you people, and education is the important tool for doing and achieving anything, and your mind is the best weapon. You can say best weapon as well as worst weapon. It depends on you how you are taking it. If you are taking your mind as a positiveness, then it will be a best weapon. If you take it as a negative weapon, then it is a worst weapon. So once again, I advise you all to be busy with your studies rather than being busy with your electronic gadgets of your parents. So in this, all the parents have to take care of their respective children, that they should not be busy with their electronic gadgets. So on behalf of IIT Manthan, I would like to suggest all the parents of all the kids and the children, those who are studying in our institute or not studying institute, please try to make your kids busy with the studies rather than being busy with electronic gadgets. It's your planning that how you people managing your child or children busy with your studies. So once again, I request all the parents, take care of their children with safety. So now come on to topic. So the topic is human eye. So in human eye, what we are doing, in human eye we have done defects of vision. So in defects of vision, in human eye we are doing defects of vision. So chapter is human eye.
तो ह्यूमन आई में हम क्या कर चुके हैं, ह्यूमन आई में हम कर चुके हैं, डिफेक्ट्स को हम कर चुके हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा कि डिफेक्ट्स में हमने पढ़ा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हमने पढ़ा, दो डिफेक्ट्स हमने पढ़े। नंबर 1 मायोपिया हमने पढ़ा, नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब मायोपिया हमने पढ़ लिया है, हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ लिया है। अब चीजें ये हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ टू रिमेम्बराइज द डिफरेंसेस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वैसे तो थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसको रट्टा मार के याद करोगे यू विल नेवर रिमेम्बराइज, आपको हर बार इसको याद करना पड़ेगा। तो अगर समझ के याद करोगे तो आपको ये टॉपिक जिंदगी में कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा कि डिफेक्ट्स होता क्या है, कितने टाइप्स हैं डिफेक्ट के, और डिफेक्ट आने के बाद क्या क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके रीजन क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, और इसको डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मायोपिया की बात करें, मायोपिया, तो ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर मेरा डिवोटेड है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की समराइज्ड थ्योरी को किस तरह से याद किया जाए, इन टर्म्स ऑफ कि आपको कभी याद ना करना पड़े और कॉन्सेप्चुअली आपको सेट हो जाए आपके माइंड में। तो क्या है, पहला आपका है मायोपिया। पहला है आपका फर्स्ट इज योर मायोपिया। अब क्योंकि हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो जैसे ही, तो एक होती है आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, दूसरी आपकी होती है डिफेक्टिव आई। डिफेक्टिव आई, तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो है कैपेबल टू सी distant objects, to see distant objects as well as nearby objects clearly। तो नॉर्मल ह्यूमन आई क्या है, आपकी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकती हैं और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकती हैं। ठीक है, डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई cannot see objects clearly, either distant objects
distant objects or nearby objects or nearby objects. तो normal human eye capable to see distant objects as well as nearby objects clearly. Defective eye cannot see objects clearly, either the distant objects or the nearby. It means जो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो दूर की चीजों को और पास की चीजों को दोनों को साफ साफ देख सकती है, और जैसे ही उसमें डिफेक्ट आया मीन्स डिफेक्टिव आई या तो दूर की चीजों को नहीं देख पाएगी या नजदीक की चीजों को देखने में सक्षम नहीं है. सो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन द डिफेक्ट कम्स इनटू आई, जैसे डिफेक्ट आई में आया तो हाउ टू परसीव. तो पहली चीज आएगी उसमें कि डिफेक्ट आने के बाद उसके सिम्टम्स क्या क्या है. सिम्टम्स क्या आएगा? सिम्टम्स. तो पहला है इसमें सिम्टम्स कि क्या क्या उस डिफेक्टिव आई के सिम्टम्स है. जैसे ही आई में, नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आया तो सिम्टम्स क्या क्या हैं. जैसे अगर मायोपिया की बात करें, ए पर्सन विद मायोपिक आई, सो व्हेन द नॉर्मल आई इज हैविंग सम डिफेक्ट, देन नॉर्मल आई इज नोन एज डिफेक्टिव आई, and depending on the defect it is known as some defective eye. So if it is myopia then it is called myopic eye. If it is hypermetropia then it is called hypermetropic eye. तो अब बात कर रहे हैं सिम्टम्स की. जैसे ही नॉर्मल आई में डिफेक्ट आया तो अब बात कर रहे हैं मायोपिक आई की. इट मीन्स मायोपिक आई या ए पर्सन विद मायोपिक आई cannot see distant objects clearly but can see nearby objects distinctly. तो जिस पर्सन के अंदर मायोपिया डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी आंख में डिफेक्ट आ गया मायोपिया, तो वो अपनी मायोपिक आई से दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाता है लेकिन नजदीक की चीजों को साफ साफ देख पाता है. इट मीन्स दिस मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस इट मीन्स इस डिफेक्ट के अंदर जो पर्सन है उसकी आई नजदीक की चीजों को, मीन्स शॉर्ट साइट, छोटे डिस्टेंस पे जो देख सकता है, तो नजदीक की चीजों को इजीली देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देख सकता. ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम्स के बाद आया रीजन. क्या रीजन है? सिम्टम्स के बाद आता है क्या आता है? रीजंस. क्या आता है? रीजंस. सिम्टम्स के बाद है रीजंस. अब रीजंस की अगर बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण है, तो इसमें कारण की बात कर रही हैं. इट मीन्स ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन आई उन चीजों को जहां पर वो रखी हुई है, दूर रखी हुई थी या नजदीक रखी हुई थी, वो साफ साफ देख पा रही हैं. जैसे ही डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के बाद वो चीजों को साफ साफ नहीं देख पा रही. इट मीन्स द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली. बट when the defects come into the eye, or you can say as we are talking about myopia, the person with myopic eye cannot see distant objects clearly due to this defect. So what will happen, or due to which reason this will happen, means किस कारण से यह हुआ होगा. So reason क्या है कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर दिखती है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों के रेटिना पे बनती है. सो व्हेनेवर वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इमेज क्लियरली, इट मीन्स द लाइट रेज coming from the object
will get focused at some point at the retina. तो क्या है कि जब भी हम कोई इमेज साफ साफ देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट द्वारा आने वाली, ऑब्जेक्ट से किससे होकर आने वाली लाइट रेज, प्रकाश किरणें, वो क्या है, वो हमारी आंख के किसी एक पॉइंट पे फोकस हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटिना. मींस अगर वो रेटिना में फोकस हो रही हैं तो इट मींस इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, देन द इमेज विल बी विजिबल टू आवर आई. तो डिफेक्ट आने के बाद क्या हो रहा है कि या तो वो रेटिना के पीछे बन रहा होगा या रेटिना के सामने बन रहा होगा. ठीक है, तो रीजन क्या मिला कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही, या पीछे बन रही होगी या सामने बन रही होगी. आइदर द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना और बिहाइंड द रेटिना. ये हो गया रीजन. अब है कॉज. नाउ कॉजेज. कॉजेज की बात कर रहे हैं हम. क्या क्या कारण होंगे? Causes means what will happen to the eye that it is not capable to see the distant by objects or nearby objects clearly due to the defect or depending on the defect. ऐसा क्या हुआ आंख में कि अब वो हमारी जो नॉर्मल आई थी वो अब चीजों को किसी दूरी पर रखने पर भी नहीं देख पा रही है और नजदीक होने पर भी नहीं देख पा रही है, डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट. कि डिफेक्ट किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है. जैसा कि मायोपिया पढ़ रही हैं, तो मायोपिया में वो कहता है कि ये जो कारण है, मीन्स इमेज अगर हमारी रेटिना पे नहीं बन रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हो सकता है कि आई लेंस का कर्व जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए. मीन्स आई लेंस का जो कर्व है वो थोड़ा बड़ा हो जाए. मीन्स दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. कि आई लेंस के कर्वेचर का साइज एक्सेस में होने से, ज्यादा बढ़ने से ये डिफेक्ट आई के अंदर हो सकता है. तो पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट, हर एक पर्सन की आई में एक छोटी सी ब्लैक बॉल होती है. जनरली मोस्टली पीपल आर हैविंग आई बॉल ऑफ ब्लैक कलर, बट समवन, कुछ लोगों की आंखों में ये बॉल जो है वो ब्राउन कलर की या ब्लू कलर की होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू, अगर इस आई बॉल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, मीन्स इफ द साइज ऑफ द आई बॉल गेट्स इंक्रीज्ड, तो मीन्स दिस डिफेक्ट, दिस मायोपिया मे अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द साइज ऑफ द आई बॉल. साइज ऑफ द आई बॉल, इसका मतलब ये हुआ कि आई बॉल के साइज के बढ़ने से भी ये डिफेक्ट आई में आ सकता है. सो दीज आर द टू कॉजेज दैट एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दिस डिफेक्ट में अराइज, एंड ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मीन्स आई के बॉल का साइज बढ़ने से भी ये डिफेक्ट आई में आ सकता है. उसके बाद फिर आता है रूट कॉज, कि इस रूट कॉज को दूर कैसे किया जाए, कि हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. मीन्स व्हाट शुड वी टेक द करेक्ट मेजरमेंट्स और करेक्टिव स्टेप्स टू करेक्ट दिस डिफेक्ट और फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट. तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं, फिर उसकी बात आती है. अब क्योंकि नॉर्मल आई में जब हमें चीजें नहीं दिख रही, चीजें साफ साफ दिख रही हैं, तो अब मायोपिया में दूर की चीजों को हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट किसी पोजीशन पे होगा, तो वो डिफेक्टिव आई के लिए इतना दूर जा चुका है जो कि इन्फिनिटी के बिल्कुल पास पहुंच चुका है. इट मीन्स वी कैन से दैट नाउ फॉर द डिफेक्टिव आई केस द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचेज नियर इन्फिनिटी which is present in the at some far point
इन द नॉर्मल ह्यूमन आई केस। इट मीन्स नॉर्मल ह्यूमन आई केस में जो आपका फार पॉइंट था वो जहां पर भी था उससे अब ज्यादा दूरी पे वो ऑब्जेक्ट जा चुका है डिफेक्टिव आई के लिए। मीन्स डिफेक्टिव आई को के लिए वो चीज बहुत दूर दिख रही है, इसीलिए वो उसको देख नहीं पा रहा है और वो उसकी रेंज से बाहर हो गई है। ठीक। नंबर टू में क्या है कि जब हमने डायग्राम बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, जो ए पार्ट का डायग्राम, अगर आप अपनी कॉपी खोल लीजिए एक बार, आपको टाइम दे रहा हूं मैं। सो ओपन योर नोटबुक। सो अगर आपको ध्यान हो कि जो हमने माइपिया में पहला डायग्राम बनाया आई वाला, उसमें जो फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखी है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट सोर्स। अगर आप देखोगे वो एक सिर्फ एक पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने बनाया हुआ है। तो मीन्स नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में लाइट किसी पॉइंट सोर्स से जा रही है और वो लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज आई लेंस से रिफ्रैक्ट होकर वो रेटिना पे मिल रही है। ठीक। तो हमें इमेज साफ साफ दिखती है। अब आती है बी पार्ट की बात कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कहां पर है। तो अब हमने बात की कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ड्यू टू विच द आई कैन नॉट बी कैपेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। सो अब क्योंकि वो फार पॉइंट जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट है वो फार पॉइंट का फार पॉइंट क्या है, दूर शिफ्ट हो चुका है, उसको हमने इन्फिनिटी मान लिया। अब इन्फिनिटी से सारी लाइट रे पैरेलल ट्रेवल करती हैं and all the light rays traveling parallel to the principal axis in case of a lens will refract through the lens and meet or focus at some point that is called focus generally। तो जब लाइट रे पॉइंट सोर्स से जा रही थी पहले केस में और रिफ्रैक्ट होकर वो रेटिना में मिल रही थी, अब क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट सोर्स थी वो अब कहीं दूर शिफ्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑब्जेक्ट दूर शिफ्ट हो गई है तो नॉर्मली वो जहां पर थी उसके बाद वो जो इमेज जहां बनी, अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से दूर शिफ्ट हो गई, तो वो जो फोकस पॉइंट था वो भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रेटिना के फ्रंट में फोकस होंगे, जिसके कारण इमेज नहीं बन पा रही है। ठीक। तीसरा केस। अब बात आती है करेक्शन की। तो थर्ड केस में हमें क्या करना है, हमें कोई इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसको लाइट रेज के रास्ते में रखने से लाइट रेज ऐसा लगे कि कहीं फार पॉइंट, उसी फार पॉइंट क्वेश्चन से आ रहा है जहां से वो नॉर्मल होने में आ रहा है। इट मीन्स जो अब सेकंड केस में इन्फिनिटी पॉइंट फार पॉइंट बन गया है उसको हमें किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसी फार पॉइंट पे लेके आना है जो कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ए वाले डायग्राम में है। ठीक। इट मीन्स फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई शुड बी शिफ्टेड टू द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मीन्स अब हमें कोई ना कोई लेंस लगाना पड़ेगा जो कि जिससे कि अब देखिए, अब क्योंकि लाइट रे पैरेलल जा रही है, लेकिन पहले केस में लाइट रे किसी ऑब्लिक एंगल पे जा रही थी पॉइंट सोर्स से, ऑब्जेक्ट से, तो अब लाइट पैरेलल जा रही है। इट मींस व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल and if some concave lens is placed in front of that light, in those light rays, and the light ray get diverged, light ray क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्जिंग लाइट रे आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर उनको हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो दे विल मीट समवेयर एट सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल हैविंग सिमिलैरिटी विद द सेम पॉइंट दैट वी आर हैविंग इन नॉर्मल ह्यूमन आई डायग्राम। तो आपको वही पॉइंट मिल जाएगा जो कि फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई है। तो इट मीन्स हमने डायग्रामेटिकली यह ऑब्जर्व किया कि कॉन्केव लेंस का यूज करने से मायोपिया डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। वी कैन रिमूव द डिफेक्ट मायोपिया एंड इट कन्वर्ट इनटू नॉर्मल ह्यूमन आई
विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो कॉनकेव लेंस का यूज करके जिसकी पावर सुटेबल हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, एंड द डिफेक्टिव आई विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया, सिम्टम्स, रीजंस, कॉजेज, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। अब फिर हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि अगर हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस नॉलेज फॉर द लेंसेज, द लेंस विच इज हैविंग नेगेटिव फोकल लेंथ, दैट लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, अगर मैथमेटिकली अगर हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आती है, देन वी कैन से द लेंस विच इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट myopia, that is your concave lens, and we are doing correct measurements and corrective steps. ठीक है, so this is all about myopia. एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मेरी कोशिश इतनी ही है कि मैं अपना पूरा एफर्ट कर रहा हूं कि जैसा कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है एंड वी आर स्टडिंग ऑनलाइन फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास अभी यही एक अल्टरनेटिव है कि हम लेक्चर्स बनाकर ऐप पे अपलोड कर रहे हैं, एंड इट्स योर ड्यूटी to go through these video lectures and try to understand these lectures. If some doubt is there, you have to ask some query. Clear? तो अब हमने देखो, अब मायोपिया में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ना ही डायग्रामेटिकली ना ही मैथमेटिकली। सो दिस इज द समराइज्ड डिटेल ऑफ मायोपिया। तो ये क्या है, ये मायोपिया की समराइज्ड डिटेल है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि मायोपिया को हम किस तरह से बता सकते हैं और हम याद कर सकते हैं। तो अब ये पॉइंट्स को आपने कभी नहीं भूलना कि मायोपिया एक डिफेक्ट है, और जब मायोपिया डिफेक्ट आ जाता है, नॉर्मल ह्यूमन आई कन्वर्ट हो जाएगी डिफेक्टिव आई में, और डिफेक्टिव आई में या तो डिफेक्ट होगा दूर की चीज़ों को ना देखने का या नज़दीक की चीज़ों को ना देखने का। ठीक, जैसे ही डिफेक्ट आ गया तो अब हमें ये देखना है कि ये आई किस डिफेक्ट्स में कौन डिफेक्ट आ गया। इट मीन्स वो हमें कौन बताएगा, वो हमें सिम्टम्स बताएंगे। तो नंबर 1 क्या है, सिम्टम्स। कि सिम्टम्स विल इन्फॉर्म अस अबाउट द डिफेक्ट, विच डिफेक्ट हैज कम टू योर आई, either it is myopia or it is hypermetropia. So depending on the symptoms we can identify the defect. Number 2, reasons. कि what are the reasons, what are the possibility of reasons due to which eye is not capable of seeing the distant objects in case of myopia. कैसे कौन से रीजन हैं जिनके कारण जो डिफेक्टिव आई है वो अब दूर की चीजों को नहीं देख पा रही है। फिर नंबर 3 क्या था, कॉजेज, कि आंख में ऐसा क्या हुआ। देखिए रीजंस हैं कि हम उस चीजों को साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये वो चीज होगी। कॉजेज का मतलब क्या है, किससे देख रहे हैं, आंख से। इट मींस आंख में ऐसा क्या हुआ कि अब हम वो चीज नहीं देख पा रहे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, रीजन और कॉज दोनों का मीनिंग सेम है, बट रीजन का मीनिंग ये है कि हम दूर की चीजों को क्यों साफ नहीं देख पा रहे। तो रीजन क्या होगा कि इमेज की बात करें कि इमेज साफ साफ क्यों नहीं बन रही होगी। ठीक है, अब कोज का मतलब क्या है कि हम चीजों को देखते हैं आंख से, कि आंख जो है, आंख में डिफेक्ट किस कारण से आया, कि आंख में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, फिर आता है आपका डिफेक्ट को करेक्ट करने का मेथड, कि हाउ टू करेक्ट द डिफेक्ट। सो ये आपका मेथड है करेक्ट डिफेक्ट को करेक्ट करने का। सो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द समराइज्ड डिटेल
or you can say brief summarized detail of myopia defect in your eye. So with this, I am trying to make you people rememberize these defects in terms of summarized detail. So by memorize these points, you can never forget what is the defect myopia, what are the symptoms, what are the reasons, what are the causes, what are the corrective steps to be taken to correct this defect, and what should be it is diagrammatically, and what should be it is mathematically. So tomorrow we will do hypermetropia summarized brief detail, so that you people can memorize the hypermetropia also. So till then, take care, be safe, stay at home, and be updated. Thank you.